Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, Need of Animals. So in this chapter we shall learn about the what are the useful things and objects that are we obtain from the animals. Now students, how should we categorize the domestic animals and the pet animals and what are the things that we obtain from the animals? All these things we will discuss in our chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter 6, Need of Animals. So, get start. Identify these animals and write what we get from them. So, students, look at the image and identify the animal and suggest what thing we get from this animal. Now, first image is a cow. Cow gives us milk. So, write here milk. Next image shown is a hen. Hen gives us egg. Next and last is a goat. Goat gives us milk. Let's read the chapter. Food is very important for all living beings. बच्चों फूड जो होता है वो सारे ही लिविंग बींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे लिव एंड ग्रो. एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए और एनर्जी के लिए. एनिमल्स नीड शेल्टर टू. बच्चों एनिमल्स को रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है. द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं. किसकी तलाश में क्या सर्च करते हैं? वो खाने के लिए फूड और रहने के लिए जगह है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, फूड फॉर एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. बच्चों अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स ना डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स फूड के ईट करते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, ग्रास एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल्स बच्चों प्लांट्स ईट करते हैं, ग्रास ईट करते हैं या कुछ और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स को ईट करते हैं एज अ फूड. सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बिवोर्स. उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो प्लांट ईट करते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हार्बिवोर्स कहते हैं. Following are some herbivores. Look at the images. First image is a cow. Second is giraffe. Third one is zebra. Second last horse and goat. Now, some animals eat the flesh of other animals. Such animals are called flesh-eating animals or carnivores. Following are some carnivores. कुछ एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को किल करके उनकी फ्लैश को ईट करते हैं, उन एनिमल्स को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं या कार्निवोर्स भी. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज. लायन, लेपर्ड, टाइगर, फॉक्स एंड ईगल. नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. Animals that eat the flesh of already dead animals are called scavengers. जो एनिमल्स जो डेड हो चुके एनिमल्स हैं उनकी फ्लैश को ईट करते हैं, उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं. Some animals eat both plants and the flesh of other animals. Such animals are called omnivores. Following are some omnivores. कुछ एनिमल्स बच्चों प्लांट भी ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को भी ईट करते हैं. उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस. डॉग, मंकी, bear and crow. Animals like frogs, spiders and lizards eat insects and worms. Such animals are called insectivores. Following are some insectivores. कुछ animals बच्चों frogs, spider, lizards ये क्या ईट करते हैं? worms को worms या insect को ईट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? insectivores कहते हैं. Now students look at the image of insectivores. Frog, spider and lizard. Next is animals like squirrels यानी बच्चों गिलहरियां, hens and pigeons eat grains. ये animals क्या eat करना पसंद करते हैं? grains. Such animals are called granivores. Following are some granivores. Now students बच्चों granivores के कौन से होंगे? जो grains eat करते हैं. Now look at the images. First image is squirrel यानी गिलहरी, hen and pigeons. Now
Let's become a champ and let's do an exercise. Circle the odd one out on the basis of the food they eat. स्टूडेंट्स, आपको ना किस तरीके के फूड आइटम को वो ईट करते हैं और किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसमें से आपको एक ऑड वन आउट को चूज करना है। 3 हमारे जो होंगे वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे और एक जो है अलग कैटेगरी को बिलोंग करेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट। काउ, गोट, हॉर्स एंड लायन। बच्चों, लायन क्या है हमारा, किस कैटेगरी में आता है, हमारा कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है, सो सर्कल दिए लायन। नेक्स्ट, फ्रॉग, पिजन, हैन एंड स्क्विरल। बच्चों, फ्रॉग, पिजन और हमारा हैन क्या है, ये हमारे इंसेक्टिवोर्स हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। बट स्क्विरल क्या है, हमारे डिफरेंट कैटेगरी में आती है, ग्रेनिवोर्स की कैटेगरी में आती है। नाउ नेक्स्ट इज लिजर्ड, फ्रॉग, ईगल एंड स्पाइडर। बच्चों, लिजर्ड, फ्रॉग, स्पाइडर ये हमारे डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं और ईगल क्या आता है हमारे स्कैवेंजर्स में। नेक्स्ट, टाइगर, क्रो, वॉल्फ एंड लायन। बच्चों, इसमें से हमारा टाइगर, वॉल्फ और लायन ही हमारे कौन से होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं, सिर्फ वो ही ईट करते हैं। क्रो हमारा ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है, जो प्लांट भी ईट करता है और हमारा फ्लैश ईटिंग एनिमल की कैटेगरी में भी है, सो सर्कल द क्रो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, होम्स फॉर एनिमल्स, नेचुरल होम्स। जस्ट लाइक अस, animals also need some kinds of shelters to protect them from heat, cold, rain and other animals. Such shelters are their homes. बच्चों, जैसे हमारा घर होता है हम उसमें रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी घर होते हैं जिसमें वो रहते हैं। होम्स जो होते हैं वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। Different animals live in different types of homes. Different animals बच्चों different homes में रहते हैं। Some animals live in natural shelters. कुछ animals बच्चों हमारे natural shelters में रहते हैं। Now look at the first image. Animals like lion, wolf, bear, etc. live in dens. कुछ एनिमल्स बच्चों गुफाओं में रहना पसंद करते हैं, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं उसका, जैसे लायन। Now next is animals like elephant, zebra, deer, giraffe, etc. live under trees. कुछ animals को पेड़ पौधों के नीचे रहना पसंद होता है। Animals like monkey, baboon, quail, etc. live on trees. कुछ animals बच्चों कहाँ पे रहते हैं, trees यानी पेड़ पौधों के ऊपर। Animals like snake, owl, etc. live in the holes of tree trunks. बच्चों, कुछ एनिमल्स पेड़ के अंदर होल करके उसके अंदर छेद बना के उसमें अपने शेल्टर को बिल्डअप करते हैं, जस्ट लाइक स्नेक। नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। द कुकू यानी कोयल इज द ओनली बर्ड दैट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। इट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स सच एज द क्रो। आपको पता है जो कुकू यानी कोयल जो होती है वो अपने लिए नेस्ट को खुद नहीं बनाती, वो अपने एग्स जो होती है क्रो के नेस्ट में ले करती है। नाउ नेक्स्ट इज होम्स मेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी अपने लिए होम्स को बनाते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर होम्स। नाउ लुक एट द फर्स्ट इमेज। बर्ड्स मेक नेस्ट। बर्ड्स जो होती हैं घोंसला बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। रैबिट्स मेक बरोज। रैबिट्स जो होते हैं बरोज बनाते हैं, यानी होल को डिग करते हैं ग्राउंड के अंदर। बीज मेक बी हाइव्स। मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है, बी हाइव्स में। एंट्स मेक एंट हिल्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। अ टेलर बर्ड स्वीज लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट। जो टेलर बर्ड होती है वो अपना नेस्ट घोंसला किससे बनाती है, पत्तियों को सीव करके, मतलब सिल के। नेक्स्ट लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। A spider spins a web not to live in but to catch its prey. आपको पता है जो स्पाइडर मकड़ी होती है, आपको लगता होगा वो अपना स्पाइडर वेब इसलिए बनाती है रहने के लिए, नहीं, वो अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए स्पाइडर वेब बनाती है। नाउ नेक्स्ट इज मैन-मेड होम्स। पीपल मेक शेल्टर्स फॉर देयर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। बच्चों, हम सब भी क्या करते हैं, अपने पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए शेल्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। Now look at the first image. Dogs are kept in a kennel. Dogs कहाँ रहते हैं, कैनल में। Fish are kept in an aquarium. Fish को कहाँ रखते हैं हम, एक्वेरियम में रखते हैं। Hens are kept in a coop. Hens के घर को हम क्या कहते हैं, कूप। Horses are kept in a stable. Horses कहाँ रहते हैं, स्टेबल में। Cattle are kept in a shed. Cattle कहाँ रहते हैं, शेड में।
शीप एंड गोट्स आर कैप्ट इन अ पेन। बच्चों शीप और गोट के शेल्टर को हम पेन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड ग्रो, that defines to increase in size over a period of time। ग्रो का मीन्स होता है टाइम के अकॉर्डिंग साइज का इंक्रीज होना। शेल्टर मीन्स होता है अ प्लेस गिविंग टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। शेल्टर बच्चों एक टेम्परेरी प्लेस होता है जो किससे बचाता है, बैड वेदर, हीट से, रेन से, कोल्ड से। फ्लैश मीन्स होता है द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल स्पेशली ऑफ अ वर्टिब्रेट। बच्चों फ्लैश हम एनिमल का वो बॉडी पार्ट होता है जो सॉफ्ट होता है, स्पेशली उस बॉडी पार्ट को हम वर्टिब्रेट पार्ट भी कहते हैं। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमने अपने चैप्टर में समझा था डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं। ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोर्स बच्चों प्लांट्स और फ्लैश दोनों को ही ईट करते हैं। लायंस एंड बियर्स लिव इन डेंस। लायंस और बियर्स जो होते हैं वो डेंस में रहते हैं यानी गुफा में। रैबिट्स मेक बरोस, रैबिट्स बरोस में रहते हैं। हॉर्सेस आर कैप्ट इन अ स्टेबल, हॉर्सेस स्टेबल में रहते हैं। Now students, it's exercise time. Let's do an exercise A. Take write the correct option. इसमें आपको अपनी स्टेटमेंट को रीड करके 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, हार्बीवोर्स। बी इज द राइट आंसर। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट, कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जो फ्लैश ईट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेंस एंड पिजन्स ईट, हेंस और पिजन्स क्या ईट करते हैं, ग्रेन्स, इसलिए हम इन्हें ग्रेनिवोर्स भी कहते हैं। सो इज द राइट आंसर। डॉग्स आर कैप्ट इन, डॉग्स कहाँ रहते हैं, कैनल में। सो बी इज द राइट आंसर। लायन, वॉल्फ, बियर एक्सेट्रा लिव इन, बच्चों लायन वॉल्फ बियर कहाँ रहते हैं, डेंस में रहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको अपने स्टेटमेंट को रीड करके ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा एक्सेट्रा लिव अंडर ट्रीज। नाउ फिल ट्रीज हियर। मंकी, बबून एंड कोला लिव ऑन, वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों के ऊपर, लिव ऑन ट्रीज। और एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा बच्चों पेड़ों के नीचे रहते हैं। बर्ड्स मेक, बर्ड्स चिड़िया क्या बनाती है रहने के लिए, नेस्ट, घोंसला। फोर्थ वन इज डैश मेक बरोज, कौन बरोज बनाता है रहने के लिए, रैबिट। ants make anthill। now let's do exercise C, give 2 examples of each of the following। इसमें आपको 2 examples देने हैं हर एक कैटेगरी के। फर्स्ट, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स ईट करते हैं, गोट एंड काउ। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, कौन से एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, लायन एंड टाइगर। एनिमल्स दैट ईट ग्रेन्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो ग्रेन्स ईट करते हैं, hen and squirrel। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो ओमनिवोर्स होते हैं, क्रो एंड बियर। एनिमल्स दैट ईट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, बच्चों कौन से एनिमल्स होते हैं जिन्हें इंसेक्ट्स और वॉर्म्स पसंद होते हैं, स्नेक्स एंड बर्ड। नाउ स्टूडेंट्स आप एनी 2 एग्जांपल्स इसमें फिल कर सकते थे। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.